بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. بنائے زمین و آسمان کے، خوشی اور غم کے، میاں اور بیوی کے، بھائی اور بہن کے، ماں باپ کے، ساس سسر کے، بادشاہ اور غلام کے، آنسو اور حسین کے، جھاڑوں میں بھی بڑا جھاڑ چھوٹا جھاڑ، بڑا ماؤں چھوٹا ماؤں، بڑا تربوز چھوٹا تربوز، ہرا ایپل، ہر چیز کے جوڑے بنے. نہیں بنا تو نہیں بنا تو الہکم الہ واحد. قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک بشر ہیں اور آپ پہ وحی آتی ہے. الہی آپ کو وحی آتی ہے، یعنی آسمان سے جبریل امی آتے ہیں، آپ کو پیغام لا کر سناتے ہیں اور قرآن کریم پہنچاتے ہیں جو لوح محفوظ سے نکال کر کہاں پہ رکھا گیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں بولیں گے کہاں پہ رکھا گیا. آپ کا ٹائم ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کے گھر میں درس ہے یا آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے. سوال کوئی کریں گے تو جواب دینے کا جذبہ آئے گا. اگر جواب نہیں معلوم ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سیکھنے کی طلب پیدا ہوگی، تلاش کی طلب ہوگی. اگر کوئی سوال نہیں کریں گے ٹیچرز آپ کو جواب دینے کی وہ عادت نہیں پڑے گی. قرآن سوال کرتا ہے کئی بار. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہاں پہ ہے قرآن کریم پورا سارا نکال کر کہاں سے نکالے، کہاں پہ رکھیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایمن مدرسہ اور کون سا مدرسہ؟ الہدایہ. 2 مدرسے کے ہیں ہوں گے. کوئی بھی مدرسے کا ہو، مسجد نبوی کا ہو یا مکہ المکرمہ کا ہو، اسٹوڈنٹس کو کوشش ہم پورے مل کے کریں گے. سب ایک ہی کون سا ہے مسجد نبوی میں؟ دارالسلام. سارے ہم ایک ہی ہیں. مدینہ منورہ میں جو دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں وہی دین تقسیم ہو گیا ہے. آج کل دین کو تقسیم کر دیے. وہی دین ہر جگہ ہونا چاہیے. دین میں تبدیلی نہیں ہے. اب پر مدرسوں میں لائے ہیں یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے. آپ کوئی بتائیں گے قرآن کریم کہاں سے نکالا گیا، کہاں پہ رکھا گیا؟ بولو. ویری نائس. الحمد للہ محفوظ سے نکال کر سب کو معلوم کرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا گیا، نہیں اترا. تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں لوح محفوظ میں سے نکال کر پہلے آسمان پہ ایک بیت ہے. کیا اس کے بعد کا معلوم ہے؟ نہیں معلوم. بیت ہے بیت العزت کہتے. بیت العزت میں لوح محفوظ سے نکال کر پورے مکمل 30 جز وہاں پہ رکھ دیے. وہاں سے تھوڑا تھوڑا لاتے تھے جبریل امین. کتنے سال تک لاتے تھے؟ 23 سال. آپ کوئی نہیں کہیں گے مہربانی پلیز. لو یو آل فار دا سیک آف اللہ. ان کا شرف ان کو حاصل کرو. آپ تو ہر جمعرات رہتے ہیں، پہلا دن ہے آج ان کا. کچھ تو مزے لینے دو دین کے. جو ذائقہ چکھتا ہے دین کا وہ دنیا اور آخرت میں ذائقوں میں رہتا ہے، موت کا مزہ چکھنے تک. کیونکہ آج بات ہو رہی ہے الحیات، حیات کی بات ہو رہی ہے. ہم چکھیں گے مزہ دین کا. وہ مزہ جب جس کو ذائقہ آ جائے گا نا، وہ ذائقے کے علاوہ کوئی ذائقہ نہیں ہے پوری کائنات. دین کا ذائقہ آپ کتنی خوشی خوشی سے اٹھا کے لے آ رہی ہیں، اتنا مزہ لے لے کے رکھ رہی تھی دین کا کام. آپ سب کتنا دین کا کتنا وہ کر رہے تھے کہ چلو دین 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 کے لیے دین کے لیے دین کے لیے. یہ نہیں علی دولہ حسین حسین دین، یہ دین نہیں ہے. دین بدلا ہے. تو نیکی کر نیکی ملے گی، بدی کر بدی ملے گی. یہی ہے دین. بدلے کا نام بدلا ہے. جو کرے گا وہ پائے گا. آخرت میں دنیا تیرے لیے عارضی ہے. اجل مسمى ایک معین وقت تک دیا گیا ہے. کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا ہے. تسلیم بازی کا میکا ہے.
यहाँ पे इन्होंने कितना पले होंगे, रहे होंगे, भाइयों के साथ कितना खेला होगा, कितना जिया होगा माँ बाप के साथ। आज कोई नहीं, उनके कई खानदान के माँ बाप नहीं, कोई नहीं है। ये जिंदगी को किसी की ला के देखो, अपनी जिंदगी को ला के देखो, बचपन से कैसे गुजारे, अब तक कहाँ खड़े हैं, बाकी और कब तक हम रहेंगे किसी को खबर नहीं है। कोई आलिम नहीं कह सकता, कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई नहीं कह सकता कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। झूठे हैं जो जादूगर कहते हैं जाओ फलानी तुम्हारा काम हो जाएगा, झूठे हैं। कितने साल तक आता रहा कुरान करीम? 23 साल तक। हमें जज्बा कब आएगा? दिल हमारा खुलेगा कब? जब ज़बान खुलेगी। इस्लाम कैसे कबूल करते हैं? ज़बान से। ज़बान से कबूल करने के बाद क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। अमल अगर नहीं करेंगे दीन में दाखिल नहीं हुए हैं। समझ में आया? हयात के बारे में ये दो चीजें हम पढ़ते हैं रात को सोने से पहले। अब हमारे यहाँ किसी के यहाँ भी मैयत के टाइम पे इजाजत है ना, मौत बोल सकती है मुझसे? ऐसा ना हो कि पनौती आ जाएगी घर पे, किसके घर जाती है पूछ लेती हूँ। हक है, हक है, हक का मतलब सच है, ये सच है। मौत सबको आनी था, हर रात को आती है भाई, हर रात को आती है बाजी, हर रात को आती है। रूह निकाल लेते हैं, सो जाते हैं, किसी को तहज्जुद में लौटाते हैं, किसी को फजर में लौटाते हैं, किसी को सुबह के 10-11 बजे लौटती है रूह निकल जाती है, रूह निकाल लेते हैं। ठीक है, सूरह मुल्क। अल्लाह के लिए नियत करके खड़ना, तेरी राहों में खड़ी हूँ, जितनी देर पानी नहीं पीऊंगी, जितनी देर तकलीफ होंगे, ये सारा मैं नेक अमल जमा करूंगी, मुझे ये क़यामत में अता करना। क़यामत में आबे कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पिला और तुम्हारे हाथों से शराब पिला। जब तक हम जिक्र करेंगे, तेरे बारे में बात करेंगे, जान भी निकल जाए इसी राहों में निकले, बस तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। हर कोई दौलतमंद भी बैठा है, मिडिल क्लास भी बैठा है, गरीब भी सुन रहा है, हर तरीके के हैं। ये होटल में है 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 0 स्टार। कोई झोपड़ी में भी है, कोई रोड पे भी है। ये पूरे स्टार छोड़ के जाना है, कोई स्टार नहीं रहेगा, पूरे स्टार छोड़ के जाना है। कभी अपने आप को नहीं ढालो, इनो अमीर इनो गरीब। कई गरीबों में बैठना पसंद करते हैं, ये छोड़ो जी, काम वालों के साथ जाके क्या बैठना, गरीबों के साथ। आज भी हम में है, जो अबू जहल में था, अबू जहल में था। अबू जहल पूछता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जो बैठे हो यहाँ पे फकीरों के साथ, इन फकीरों को रवाना करो ना, तब हम आके बैठे, हम तो सरदार हैं। आज भी हमारी कई बहनें अच्छी हो गई है माशाल्लाह, मगर दिल के कोने में पूछती हूँ, बुरा नहीं मानना, कभी होता है नहीं होता, ईमानदारी कहना। मैं भी कहती हूँ, कभी दिल में मेरे भी डालेगा, आपके भी दिल में डालेगा, इतने फकीरों के साथ क्या भी नीचे बैठना, इतना अल्लाह दिया है या नहीं? सच कह रही हो, झूठ कह रही हो? सच ना। ये दिल में से निकाल दे, जिस दिन पूरा दिल में से निकल जाएगा, दिल पाक होगा, कल्बे सनी कलीम, कल्बे मुनीब लेकर जाएंगे अपना दिल। हमारी कोताहियाँ हयात में जो छोटी छोटी हमारी गलतियाँ हैं, इसको हम निकालेंगे अपने आप से। जब तक नहीं निकालेंगे हमसे कोई भी गलतियाँ, हम निकालेंगे तो हम निकाल लेंगे, कोई और बोलेगा दिल जल जाता है, हम ऐसे, हम वैसे, हम ऐसे नहीं बन, हम ऐसे नहीं बन। इसलिए मैं याद दिलाती हूँ कोताहियों को जो जिंदगियों में हमारी हैं, हम अपने आप से इसको धो लें। इंसान खुद हाथ धोने से अच्छा धुलता है पानी में, कुछ नहीं लगता, कोई और पकड़ के धुनाई कहीं रुक जाता है, कहीं नाखून के पीछे कहीं ना कुछ रह जाता है। इसलिए रात को सोने से अच्छा मुझे ये बताइएगा, किसके घर में मौता के बाद 40 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ी जाती है? हाथ उठाइएगा, मेहरबानी होगी। ईमानदारी से आप मुस्कुरा रही हैं, किसके घर में पढ़ते हैं? हमारे खानदान में पढ़ते हैं, हाथ सब पढ़ते हैं। हाथ उठाइएगा।
ایسے پڑھتے ہاتھ اٹھاؤ نا, مسکراہٹ کہہ رہی ہے جواب, میں قرآن سے جواب دیتی ہوں. غلط ہے آپ کا جوتا میرا سر, آپ سب کے جوتے میرا سر, یہ سر اس کے لیے جھکتا ہے, کبھی ذلیل نہیں ہوا ہے. یہاں تک کہ اعلان جنگ رکھی تھی میں نے علماء میں کہ بات قرآن و حدیث میں ہے, منظور علی مجھے کاٹ سکتے ہیں. دعویٰ کرو دین کے لیے, رب کھڑا ہوگا تمہارے لیے لڑنے کے لیے, تم اس کے لیے لڑو, اس کے ہو کے رہ جاؤ. موقع ہوتے ہی 40 مرتبہ سورہ ملک پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ, میں پڑھتی تھی, میں آپ کے ساتھ اٹھاتی ہوں, آپ دیکھو کون ہے, اٹھاؤ. اب اٹھائیں گے کیونکہ میں اٹھا رہی ہوں. اٹھاؤ کون کون پڑھتے ہیں 40 مرتبہ سورہ ملک. شرم آتی ہے؟ نہیں شرم آنا, ورنہ جھوٹے ہیں ہم لوگ. ہمیں بھی پہلے پڑھتے تھے, جب سے مدرسہ دیکھ کر چھوڑ ڈالے. اب دیکھو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یاد رکھنا, سورہ ملک کھولو اپنے موبائل سے بھی کھولنا سب کو آتا ہے, سب کے ہاتھوں میں وہ بربرا جو ہے اس کو لگاؤ. الحمدللہ ہر غریب امیر سب کے ہاتھ میں ہے. سورہ ملک ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی ڈلنا نہیں, اندر کا میرا جن کہتا ہے چلا مزہ لے. اوکے, ہمارا جن کہتا ہے آ بیٹا آتی ذرا مزہ لے لے, کہتا ہے ذرا ٹیک لگا لے, ذرا سا جھوم لے, اللہ اللہ اللہ. یہ بھی گناہ ہے, وہ مست ہوتا ہے, ہمیں ہٹا دیتا ہے. اس لیے ہم اس کو قید میں رکھیں گے, یعنی کہ کنٹرول میں رہیں گے, اپنے آپ کو ٹائٹ رکھے. ہلنے دل کرتا ہے خود رک جاؤ. خود کنٹرول جتنا تمہارے ہاتھ میں, کار یا 2 ویلر چلانے کے لیے سائیکل تم چلاتی ہو نا بیٹا, کنٹرول بچی کے ہاتھ میں بریک ہوگا, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. بریک اپنے ہاتھ سے لگاؤ, اپنے پیروں سے لگاؤ تو بریک ہوگا. کھولے آیت کھولو, بسم اللہ. الذی خلق الموت, بسم اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل, کیسے پڑھتے ہم لوگ, روتے ہوئے میتوں کو رکھ کے پڑھتے ہیں. کبھی کھول کے اس کو پڑھ کے سمجھا کیا دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک, تمام برکتیں اسی کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ میت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جو کچھ بھی ہے دنیا کا, رائی سے لے کر برج خلیفہ سے لے کر وائٹ ہاؤس سے لے کر زمین کے آسمان کی زمینوں کی ہر چیز, جنت و دوزخ سے لے کر انبیاء اولیاء صالحین صدیقین شہداء میں لکھوں تو آنکھوں میں ہماری کیمرہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اصل کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہے, وہ چھوڑ کے فوٹو پکڑتے رہتے ہیں. اس کی فوٹو, اس کی فوٹو, اس کی فوٹو, اس کی فوٹو, خود کی فوٹو, خود کی سیلفی, خود ناک کی ہر چیز کی لیتے ہیں. یہ جو لے رہے ہیں نا, یہ ڈپلیکیسی جو ہے نا, اللہ کو پسند نہیں ہے. جب اس نے اتنا اچھا کیمرہ دیا ہے, آپ کی آنکھوں میں موجود ہے. دیکھو ابھی میں سوچتی ہوں نا, کھلی آنکھوں سے سوچتی ہوں میرا بچپن کیا تھا, کھلی آنکھوں سے سوچتی ہوں میری شادی کب ہوئی, کھلی آنکھوں سے سوچتی ہوں میں دبئی کب گئی تھی, کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کتنا عرصہ میں نے وہاں پہ تعلیم پائی, بچے ہوئے, زندگی کی سب کی. کھلی آنکھوں سے سوچتی ہوں واپس یہاں پہ آئی, 11 سال سے دین چلا رہی ہوں, 12واں سال. آپ کا کیمرہ, آپ کی USB, تمہارا دماغ, تمہاری میموری کیوں کمزور ہو رہی ہے, کیوں یادداشت کم ہو رہی ہے, آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. یہ حیات ہے, یہ حیات ہے, آپ کی سب چیزیں زندہ ہیں, آپ اس کو استعمال کرو, وہ مضبوط ہوں گے. چھوڑو ان نقلی چیزوں کو, اللہ کی نعمت کو دیکھو, آنکھوں کو. کیونکہ ہم برا بھی پکڑ لیتے ہیں, اچھا بھی پکڑ لیتے ہیں کیمرے میں. آنکھ برا دیکھتی ہے تو ضمیر روکے گا تمہارا, آنکھ برا دیکھتی ہے تو ضمیر روکے گا, ضمیر روک دیتا ہے. یہ حیات ہے. پھر اس کے بعد آیت آتی ہے, کیا آتی ہے, آپ بولیں گے, میں بولوں, آپ سب بولیں گے, بولو, پڑھو پلیز, میرا ساتھ دو, پڑھو پڑھو. وهو على كل شيء قدير. اس کے بعد اسٹارٹ کریں شروع سے, بسم اللہ, سب مل کے اسٹارٹ کریں. بسم اللہ. اب ایسے ہے نا میت میں ایک بار پڑھتی ہوں نا, آپ سب پیچھے بولو. میں ایک بار پڑھتی ہوں نا,
आप सब पीछे बोलो। जिसको नहीं आता जेर जबर कत्ल करते हुए पढ़ते जाते हैं, कितनी सजा मिलेगी पढ़ाने वाली औरत को और पढ़ने वालों को, जो तरीका बनाए हैं उनको, सबको सजा देंगे अल्लाह ताला। अगर हम नहीं रोकेंगे, हमको पहले सर फोड़ेंगे, सबसे पहले हमारा सर फोड़ा जाएगा। सबसे पहले खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। इसको माना मालूम है, प्लीज हाथ हम पढ़कर समझते नहीं कुरान करीम को। अल्लाह ताला कहते हैं तुमको जरूर आजमाऊंगा, सेहत से, माल से, पैसों से भी आजमाएंगे, औलाद से भी आजमाएंगे। किसके बच्चे मर जाते हैं, कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई नाकारा हो जाते हैं, कोई दीन में हो जाते हैं, सब अल्लाह ताला की मर्जी। आजमाऊंगा किसे? अनबिया को, औलिया को, सालिहीन को, सिद्दीकीन को, किसको? सारे बंदों को, एक भी नहीं बचा, एक बशर भी नहीं बचा, भले वो हाफिज कुरान हो, भले आलिम दीन हो। चले तो निकालेंगे उनको बड़ी आसानी से, डालेंगे, हुक्म है, निकालेंगे बड़ी आसानी से। हमें कोई तकलीफ आती है तो पुकारते हैं, फौरन चली जाती है, फौरन अल्लाह ताला आसानियां पैदा करते हैं। यब्लुकुम अय्युकुम, मतलब क्या? तुम सब में से कौन अहसन, अच्छे अमल करने कौन अच्छे अमल करता है? कौन से अच्छे अमल? अच्छे खूबसूरत अमल का मतलब हम समझते हैं। अच्छी अमल किसको कहते हैं? नमाज का बोली ना मेरा, नमाज अच्छी पढ़े, कुरान अच्छा पढ़े, सदका अच्छा दे, सबको अच्छी बातें करे, सबको खाना खिलाए, सबको सलाम करे, इतना ही अमल है। असल अमल क्या है? असल अमल क्या है? पहले प्याला पी लो, पहले कौन सा? मुरीदी का, हाँ? कौन सा? फिर मुंह बंद कर देंगे, फिर दफना देंगे, फिर लो मारा मारी शुरू, वहां पे सांपों बिच्छों को काट शुरू, अंधेरी पोल्ट्री शुरू। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं ढांपा हुआ हूँ, अजीज गफूर, मैं माफ करूंगा अगर कोई कोताही हो जाएगी तो, जान के नहीं करो। तो याद रखो, पहले अमल करो। नमाज पढ़ते कोई औरत यूं बिंगा करके आके करते, नजर यहाँ पे ना बुद्ध नहीं है, डॉक्टर बोला हड्डी हड्डी, दिल में बोलती अच्छा हुआ। आज सब सुन लेना, जो आके मुझे बोले वो भी सुन लेना। मैं कहती अच्छा हुआ, क्यों? दीन को बदला। मैं भी जब थी ना ऐसे ही पढ़ती थी, मुझे भी जब हुआ था मुझे भी अच्छा हुआ। बाद में कहती अल्लाह हिदायत दी, चले दिल को जरा तसल्ली तो दे लेना, हाँ? ताकि अब सुन के अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। मोड़ के ऐसे नमाज पढ़ डाली। अब मेरी किताब कुरान है, आपकी किताब कौन सी है? मेरी किताब है या कुरान है? कुरान। ढूंढ के देखो जिंदगियों में, जिंदगियों में ढूंढ के देखो। बाहर जाते वक्त पर्दा करे माशाल्लाह। कुरान कहता है, सूरों में कहते हैं, सूरह नूर में और कहाँ? सूरह अहज़ाब में कहते हैं, सूरह नूर में कहते हैं पर्दा अपना सही करना, चादर को सर से नीचे लेके चेहरे को बंद कर लेना। अल्लाह ताला कहते जलबिया, इसको उतारो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहना अपनी बीवियों को, अपनी उम्मत को, उम्मत की औरतों से कहना कि चेहरा अपना बंद कर दें। अगर हम बंद नहीं करेंगे, हमने कुरान को छोड़ दिया, अपनी किताब पे जिंदगी कर रहे हैं। मैन्युअल, मेरा मैन्युअल, मेरा मैन्युअल, मेरी किताब। अब हमारा मैन्युअल कुरान करीम होना चाहिए, कुरान करीम होना चाहिए। कुरान करीम कहता है अपने चेहरों को बंद कर लो। फिर वो नहीं भी हमें कुरान पे हैं, अच्छा हम कुरान पे हैं तो चेहरे क्यों खुले हैं? अच्छा देवर आए, आपको हाथ मिलाऊं? लुक लाइक बॉय, ओके? ठीक है,
अपने सिर्फ जान से इज्जत अल्लाह उसके रसूल को देने बाद में सीखी. हाँ, देवर, जेठ, नंदई, चचाजाद भाई, खलेरा भाई, रिश्तेदार, ये पूरे रिश्तेदार उठो जनाब, उठो मेरे अल्लाह की खातिर. ओके, यहाँ आते हैं, खड़ते हैं, हाथ मिलने के बाद कैसा है बतू? अच्छा है. अच्छा नहीं है. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. पूरे गले, पूरा जिस्म, पूरा लगते हैं. ये लगना निकाह जायज है. जिससे निकाह जायज नहीं है, बाप है, बेटा है, तो भी सीना खोल के नहीं दिखाना. सीना नहीं लगना. मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, सीना हम नहीं लगते. दूसरे मोहम्मदी, वो भी कभी ईद पे, खैर मोहम्मदी ईद मुबारक, ईद मुबारक. इतनी दूरी होती है, इतना सीना दूर होता है. ईद मुबारक, खैरियत बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह. खैरियत बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह. हो गया बस, इतना ही है. शौहर नहीं है दूसरा. शौहरों के जैसे गले मिल जाती, लग जाते हैं. ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं. अगर आप कर रहे हैं तो जाओ जाओ. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारी मैनुअल है. कुरान करीम, पूरा कुरान करीम यही बातें कहता है, यही आयतें हैं, यही माने हैं. इसलिए कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. माना पढ़ाने वाला भी अपने आप को सही करना पड़ता है. मैं उस तरीके का पर्दा करूं तो तुमको पर्दा कराने के लिए सही बयान कर पाऊंगी, वरना अटकूंगी. ऐसा छोड़ो, उधर की कटिंग कर दूंगी मैं, उधर की कटिंग कर दूंगी, इधर की कटिंग करके तुम्हें बताऊंगी. जब तक मैं नहीं अमल करूंगी, आप अमल नहीं करवा सकूंगी. इसलिए ऐसा न अमलो, आप अपने आप को अमल सही करें. देखो वक्त है, जन्नत है. ऐसे पतले कपड़े पहनते हैं जिस्म के अंदर दिखता है, ब्रा के अंदर के सीने के तक नजर आ रहा है. आज ऐसे कपड़े हो गए हैं, ऐसा फैशन हो गया है. बुर्के पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, नकाब पहनते हैं, शादी में जाके पूरा खोल देते हैं, सब ओपन. फिर शादी में अल्लाह नहीं रहते, वहाँ पे हॉलीडे अल्लाह ताला को. हंसी आती है ना हमें. अल्लाह ताला हॉलीडे ले लिए. आंख नहीं झपकता, मैं पलक नहीं झपकता. ला तअखुज़ु सिनतुन वला नौम, ऊँघ नहीं आती मुझे, सोता नहीं, पलक नहीं झपकता. वो रब का डर नहीं है हमें. इसलिए अल्लाह ताला कितने बड़े हैं आप सबको मालूम है. कितने बड़े मालूम है, कितने बड़े हैं. आप जरा एक्सप्लेन करेंगे अल्लाह ताला कितने बड़े हैं. बोलो, ट्राई करो. आप बोलने कम बोलती हैं, बोला करें. बोलें, बोलेंगे तो दीन पहुंचेगा. बोलो, अल्लाह ताला कितने बड़े मेंशन करो. बोलो प्लीज. सबसे बड़ी का मतलब क्या है? इतने पे रुक जाते हैं हम लोग. अल्लाह की जात सबसे बड़ी है. किससे बड़ी है? कायनात का मतलब लोग नहीं जानते. कायनात क्या है? पूरी दुनिया से बड़े. दुनिया के हद तक ही रह गए. नहीं, ऐसे नहीं बोलना. हम इसके बाद से हम बोलेंगे, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी. सबसे नीचे जमीन का गड़ा जो है, सबसे नीचे, सबसे नीचे क्या क्या कितना है, सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता. ऐसे नीचे 7 जमीन है. हम जहाँ पे रह रहे हैं वैसे नीचे 7 जमीन है. 7 जमीन के ऊपर जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे से लेकर आसमान तक 500 साल का फासला है. 500 years तक आप चलते रहेंगे तब आसमानी दुनिया तक पहुंच पाएंगे. फिर वो आसमान कितना बड़ा है, इतना बड़ा है. वो आसमान के ऊपर एक कॉइन डालेंगे तो दूसरा आसमान कॉइन के मुताबिक होगा, दूसरा उतना बड़ा. फिर तीसरा ऐसा ही बड़ा है. उसके बीच में 500 साल की मुसाफिरत है. फिर 7वां आसमान के ऊपर कुर्सी, आयतल कुर्सी जो पढ़ते हैं आप, वो माना कभी उठाऊंगी इंशाअल्लाह, कभी दर्स रखूंगी आयतल कुर्सी का, ताकि पूरा डिटेल्स लोगों को मिल जाए, इनको नहीं मिला है. तो कुर्सी के ऊपर अल्लाह ताला का एक कदम है. एक कदम, एक कदम, एक पैर मुबारक.
وہ کتنا بڑا نور ہوں گے, ان کے ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے. اور ایک مثال ملتی ہے اللہ کی مٹھی میں ہاتھ بھی نہیں جی, مٹھی کا مطلب بند, ہاتھ جو بند ہوتا ہے تو مٹھی بنتی ہے, کھلتا ہے تو ہاتھ ہوتا ہے, ہاں یا نا. مٹھی کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 زمین کو میری مٹھی میں لے لوں گا. وہ کتنی بڑی ان کا ہاتھ ہوگا. میں دیکھ کے تھر تھراتے ہوئے دعا مانگتی ہوں, تمہارے ہاتھ اتنے شان کے ہیں, مجھے جنت میں جگہ دو اللہ, تمہارا دیدار کراؤ, تمہارے شان کے ہاتھوں کا صدقہ عطا کرو. اللہ کی مٹھی میں ایسے 7 آسمان ہیں. سورج ہماری دنیا کتنی ہے, ایسی دنیا 1 2 3 4 5 گنتے 1 لاکھ 1 کروڑ ملین گنتے 1.3 ملین دنیا. یہ دنیا کتنی ہے, ایسی دنیا 1 2 3 سمجھو یہ سورج ہے, سورج میں 1 2 3 4 5 گنتے 1.3 ملین دنیا صرف سورج کے اندر ہے. ایک سورج کے اندر اتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی. کب دیوانے ہوں گے, جب اتنے پیسے والے کو دیکھیں گے تو ہم کیا کرتے, ہمیں بھی ذرا کپڑے ذرا اچھے کر لیتے, ذرا اچھا, ارے پیسے والے آ رہی بھائی, ذرا ایک اچھا ہار پہنیں گے, ذرا ہاتھوں میں ذرا بنیان ڈالیں گے, ذرا کچھ اچھے کپڑے پہنیں گے, پیسے والے آ رہے ہیں. اتنا بڑا رب کے سامنے کتنی ہمیں جھکنا چاہیے. جب جانیں گے رب کتنا بڑا ہے اتنا کم ہوں گے, جب نہیں جانیں گے یہی محبتوں میں رہ جائیں گے. اب ایسے سورج 1.3 ملین کے سورج اور کروڑوں کے دوسرے میں ہوں گے تو رب کتنا ہوگا. اللہ اکبر, سوچ کے دیکھ لو, گھوم جاتا ہے سر. رب العالمین کے بارے میں جانو گے تو ان کی بات مانو گے, رب العالمین کے بارے میں جانو گے تو ان کی بات مانو گے, ان کے بارے میں نہیں جانو گے تو ان کی بات کو نہیں مانو گے, ان کی بات کا ڈر بھی نہیں آئے گا, ان سے محبت بھی نہیں ہوگی. میں کہتی ہوں دینے والا تو اتنا دیتا ہے, اللہ تیری دین دے, تیری شان کے حساب سے دے, تیری شان کے حساب سے جنت دے, تیری شان کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. اگر ان کے طریقے پہ آپ دین نہیں کریں گے, ان کے طریقے پہ زندگی نہیں بسر کریں گے تو کہاں جا کے ان کے پڑوسی رہیں گے, کہاں جا کے آب کوثر پیئیں گے, کیسے پلایا جائے گا ہم کو آب کوثر, ہم کو آب کوثر نہیں دیا جائے گا, ان کا پڑوسی نہیں بنایا جائے گا. جس پیر کے تم بولتے ہو انہی کے ساتھ کر دیں گے. اگر وہ پیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے. تو بہتر ہے کہ ہم دین کو صحیح کریں. حیات میں ہے, زندہ ہیں, حیات میں ہے. رب العالمین کو شان کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پردہ کرو, میں کہتی ہوں اللہ نے پردہ کر دی. تمہیں معلوم ہے مجھے سب سے زیادہ ناخن بڑھانا بڑا شوق ہے. اتنے بڑے ہوتے تھے, میرا خود پارلر تھا دبئی میں, کیا میرا مینیکیورز کیا ہوتے تھے, مگر نماز ہمیشہ ہوتی تھی. مگر بڑھاتے تھے ماہواری کے ٹائم پہ, پیریڈز کے ٹائم پہ نیل پالش لگایا کرتے تھے, وائٹ کلر, ناخن کو الگ بکر کرتے تھے. جب مجھے پتا چلا اگر مر جاؤ گی اس حالت میں نیل پالش نہیں نکلے گی, میت کو نیل پالش کوئی ایسڈ ڈالنے سے بھی نہیں نکلتی, میں آج تک نہیں چھوئی. میں نے آج تک نہیں چھوئی, میں نے اس کو بہت پسند ہے. جنت میں لگائیں گے نیچرلی اللہ تعالیٰ, جو چاہے جنت میں ملے. عمران میں بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے 7 سمندر کو اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک جو عرش کے نیچے جو سمندر ہے, وہ سمندر کی یہ ایک نہر 7 زمین آسمان کو اڑا کے لے کے جاتی ہے. یہ ایک نہر, یہ ایک ویو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو رہتا ہے سمندر, وہ سمندر یہ ایک نہر 7 زمین آسمان کو دھو کے لے کے جائے گی. اتنا بڑا رب ہے, ڈرتے کیوں نہیں ہو, کیوں نہیں ڈرا ہمارے دلوں میں. چھوڑو بات کر لیں گے, بچپن سے چلا گیا, پیدا ہوئے بچے ہیں, بچپن چلا گیا, بچی جوان ہو گئی بھی, چھوڑا ذرا جوانی میں کر لیں دے. میرے امی کہتے لپسٹک تھوڑا لگا لینے دے, اسے چھوڑنا, تھوڑا بچپن ہے لگا لینے دے. پھر ہوتا ہوتا باہر جانا شروع ہو گیا, ہوتا ہوتا شادیوں میں لگنا شروع ہو گیا. اب ہمیں ڈر ہے, گھر میں لگاتے ہیں, ڈیلیز کے بعد سب پوچھ کے دھو کے جاتے ہیں.
पहले डेली छिपाया जाने से पहले ड्रेसिंग टेबल में यहाँ से वहाँ तक रखते हैं कि मेकअप करके रेडी होके फूल वो लगा के सब करके जाते। अब नहीं, डेली छिपाया जाने से पहले आप अपना धो के जाइएगा। मैयत को ले जाने से पहले धो के लेके जाएंगे। जनाजा उठाने से पहले मैयत को पूरा धोएंगे। आज हम मौत भी हयात में है, नींद मौत है, उठ गए तो हयात है, मौत तो हयात में जी रहे हैं, हर दिन मौत तो हयात में है। हम करके बाहर जाएंगे तो कम से कम आंखों में काजल नहीं लगाएंगे। अगर नकाब करते हैं, शौहर आपके साथ है, मेकअप करके लो। नकाब जब उठेगा अपने शौहर के अलावा किसी के आगे नहीं उठाते, वो लोग कर सकते हैं। अगर नकाब किसी और के आगे उठा रहे हैं तो मेकअप को छोड़ दो, नूर आएगा चेहरों पे, खबर में रोशन होंगे, रोशनी पुलसिरात पे पड़ेगी, पुलसिरात पे कट कट के मरेंगे, कट कट के मरेंगे। जहन्नुम के ऊपर बिछाई गई है पुलसिरात को, हर नबी को चलना पड़ेगा। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पुलसिरात पे चलेंगे। उनके रास्ते पे चलने वाले आराम से चलेंगे, उनका रास्ता छोड़कर दूसरों का रास्ता अपनाएंगे, कट कट के मरेंगे। अल्लाह ने कहा हुआ, कट कट के मरेंगे। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अंधी दुनिया। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है। किसी की मौत हो गई है, ये आके पूछी कौन रहते थे घर में, कौन कौन है, पूछी ना मैंने आके। क्यों पूछी? शोबाजी के लिए नहीं, जानने के लिए कितने इसमें मौत हुए हैं। कितने आप आए भाभी, आप कितनी जवान खूबसूरत, कैसे तुम्हारे जोश वलवले थे होंगे। इसी घर में शादी होके आए, आज तुम्हें बुढ़ापा आ गया, तुम्हारी जिंदगी उतनी खत्म हो गई। बुढ़ापे के बाद जिंदगी है भाभी? है नहीं है जिंदगी। तब क्या होता है बोलिए? किसी को नहीं मालूम। इतनी इनको पूछो, पल भर में जी वो कहेंगे। आपको पूछो बचपन कितना गुजरा, पल भर आप कहेंगे। हमें पूछो टीनेज जवानी कैसे जाती है, पल में गुजरी नजर आती है। आप खुद आंख बंद करो, आपके 7 साल को देखो, खोलो, अब यहाँ पे मौजूद है। किस दुनिया में जी रहे हो? छोड़ो इन लोगों को, सबको छोड़ो, अल्लाह को राजी करो। उठो, अज़ान से पहले तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला तो पूछने से पहले तुम्हें नेमतें मिलेंगी, दुनिया की पूछने से पहले मिलेंगी। औलाद अच्छी आएगी, औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। हम ना फरमान अपने रब के, आपकी औलाद कभी आपकी फरमा बरदार नहीं होगी। मैं यही अल्लाह से गुजारिश कर रही थी, एक वक्त की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहा है, मैं ना फरमान कहाँ हूँ, मुझे सीधा कर दे अल्लाह, क्योंकि मेरी औलाद भी फरमा बरदार हो जाएगी। हमारे बच्चे क्यों ना फरमान होते हैं कहीं? क्योंकि हम अल्लाह के फरमा बरदार नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊँ। हमें यहाँ अमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, हमें यहाँ अमल मिस्काल ज़र्रतिन शररन यरा। राई वक्त में भी तेरे अमाल में जाया नहीं करूँगा, न नेक न बद। तुम समझते छोटी सी बुराई क्या जी, उन हो गए उन पे हंसे। कुरान कहता है उन पे नहीं हंसना, कुरान कहता है आंख नहीं मारना, कुरान कहता है मुंह मोड़ के बात नहीं करना, कुरान कहता है दो मुंह नहीं रहना, एक ही रहना। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं आई, मैं चली गई, आप आए, आप चले गए, मैं बोलूंगी उन वैसे नहीं, आप बोलेंगे मैं वैसी नहीं। ये दो मुंह इंसान है। हम सब में बुराई है, मुझ में भी है, आप में भी है। इन चीजों को खत्म करो, इन चीजों को छोड़ो। अगर दिल में आए नहीं ये सही नहीं है। अल्लाह ताला कहता है खुल, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं बशर हूँ, मैं बशर हूँ। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बशर बोलता है उसको खत्म कर देते हैं, बशर नहीं बोलेंगे। कुरान बार बार कहता है, फिर कहता है खत्मुल अंबिया है, सारे अंबियाओं में सब इमामुल अंबिया है। दोनों चीज हैं। मतलब कैसे पढ़ते हैं हम अरबी में? अरबी में कैसे पढ़ते हैं इसका माना? आप बशर भी हैं, आप अंबिया भी हैं। कैसे पढ़ते हैं अरबी में? ला इलाहा इल्लल्लाहु
वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु, ये पढ़ते हैं। और ये क्या आता है? ला इलाहा इल्लल्लाहु, अज़ा में जवाब क्या देते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। हम ये जवाब देते हैं कि आप बंदे भी हैं, आप रसूल भी हैं, है ना? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। जो ये जवाब नहीं देता उन्हें ईमान को मुकम्मल नहीं किया। सूरह कहफ आखिरी में अल्लाह ताला कहते हैं कि तो किसको बोल रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके कहते हैं कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक बशर भी हैं, आप एक नबी भी हैं। क्योंकि वो लोग कहते थे आप बाजारों में घूमते फिरते हो, बाजारों में खाना खाते हो, आप चलते हो, आप नबी कैसे हो सकते हैं? एक फरिश्ता क्यों नहीं आया? तो अल्लाह ताला कहते बशर के साथ बोलो मैं रसूल भी हूँ, मतलब मेरा पैगाम आप पहुँचा रहे हैं। अब हयात में हम कैसे हैं? हयात कैसे मुकम्मल होगी हमारी? बचपन। अब हमारी खताएं शिर्क और बिदात और अल्लाह की नाफरमानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कहाँ से होती? थोड़ी देर, थोड़ी देर, ठीक है? कैसे होते हैं? बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से कैसे गलतियां होती हैं। अब हमारा कहाँ पे ईमान को बच्चा पैदा होता है, हम शुरू कर देते हैं बिदात। हम पे शुरू, चलो मन्नत मांगे थे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, चलो हम बकरा काट के आते हैं, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। चलो वो पीर के यहाँ हमने मन्नत किए थे, दरगाह पूजा के आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला कहता है मैंने पैदा किया, मैं मौत दूंगा, मेरे आसमान है, मेरे जमीन है, मेरा सब कुछ है, हर शय, हर मुझको सजदा करते हैं। वशजरु यसजुदान, सब मुझको सजदा करते हैं। जमीन आसमान मेरे सजदे में गिरे हैं, हम जाके बाबा के सजदे में गिर जाते हैं। यस, मैंने भी किया। यस, मुझे नहीं मालूम था। आदिलन जान के समझाने के काबिल बनाया, ये तेरा करम है, ये तेरा करम है। क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करती थी। जब तुम मोहब्बत करोगे अपने रब से सही हो जाओगे, मोहब्बत नहीं करोगे सही नहीं होगी। अल्लाह ताला कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो आप बाल निकालो, क्या करना ना बोलो मत, हकीका करना। हकीका कई औरतों का आज तक भी हुआ नहीं है। हाँ, बेचारी औरतें खुद, मैंने कहा एक एक बकरा अपने पैसों से जमा करें। अगर मेरा और आपका भी अगर नहीं हुआ है, कोई शर्म की बात नहीं है, ये तकदीर की बात है। तकदीर में होना होता तभी का हो जाता। अगर नहीं हुआ है तो एक बकरा ले, अपना काटे तो सब में तकसीम करें, खाएं, दूसरों को खिलाएं। जो मर गए हैं उनका भी अगर हकीका नहीं हुआ है तो उनका भी हक अदा करें। समझ रहे हो? हमने करते हैं, हकीकत को इम्पोर्टेंट देते हैं। आज दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस का हकीका नहीं हुआ है? सबका हो गया। आप सबने बकरा दे दिए, आप सबने बचपन में दे दिए, सबका हो गया। नहीं हुआ? हो गया। और से देख रहे हो, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ, रब नहीं चाहा, जब चाहेगा तभी होगा। ठीक है, हकीकत से बचपन से शुरू, हमारे बिदात शुरू। अब उसके बाद 12 दिन की छठी हयात की बातें होंगी आज। 12 दिन की छठी, उन्हों पायल लाना, उन्हों कान में डालना, उन्हों वो करना, सुन्नत अदा करना। ये जरूरी नहीं, सुन्नत के लिए बच्चा छोटा है, बड़ा मर गिर जाएगा, जरा हिम्मत आने दो, जरा खा लेने दो, उसके बाद सुन्नत अदा करेंगे। अपना भरोसा नहीं है अल्लाह ताला के ऊपर। सुन्नतों को छोड़ दिया है, सुन्नतों को छोड़ के जी रहे। ये हो गया। उसके बाद 20 दिन का पानी डालना मत। आप भी आ जाओ, मैं नहीं गई, कोई पानी नहीं डालूंगी। बुरी हो गई मैं, दूर हो गई, मगर उससे दूर नहीं हुई मैं, रिश्तों से दूर हुई, अपने रब से नहीं। हम रिश्तों से जुड़ते हैं, रब से दूर हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला नफरतें डाल देता है हमारे रिश्तों में। 40वां कटे, मर गए तो भी 40वां, पैदा हुआ बच्चे का भी 40वां। ये कौन सा जी 40वां? अकल ही नहीं। मैयत को भी 40वां, बच्चा पैदा हुआ तो भी 40वां।
ये कौन सा 40वां? मरने के बाद अल्लाह ताला मुर्दों के ऊपर खबरों में जो रीढ़ की हड्डी में से जो कोई हड्डी बची होगी या भूसा हो गई होगी या खत्म हो गई होगी, खबरों पे बारिश डालेंगे इसी समंदर से। तुम्हें बताइए अभी 40 दिन तक बारिश पड़ेगी, 40 दिन तक बारिश पड़ेगी। हयात होंगे सब, झाड़ों के जैसे उगते हुए जैसे थे वैसे निकलोगे। ये रब्बुल आलमीन के दीन को नहीं छोड़ना। क्या करोगे? नंगे निकलोगे खबरों में से, मैं भी आप भी। ये जो बुर्के वगैरह ये जो दिए हैं, आज जो नहीं मान रहे हैं, आज जो कपड़े जो आधे आधे पहन रहे हैं, जो स्टाइल में जिस्मों को दिखा रहे हैं। पहले मेरे बचपन में 90s में यूं ब्लाउज पकड़ के फाड़े तो रे, पिक्चर्स में देखते थे 90s में। आज माशाल्लाह 24 में है हम लोग, ओके, 30 पर 4 साल गुजर गए हैं, ओके। ये इधर फाड़ के जाना स्टाइल नहीं, खुद रेप करें अपना, खुद अपने आप से कर ले रहे। क्या भाई तू क्यों करता है, चल मैं ही कर लेती हूँ। इतने फॉरवर्ड हो गए, एडवांस जिंदगी हो गई। लड़कियां राम के पास काट के आज भी लोग नीचे तक पहन रहे हैं। ये बेहयाई का फितना हमारे अंदर ईमान की कमी की वजह से हो रहा है। ईमान अगर मजबूत होगा, कहीं दिखेगा तो ओढ़ लेंगे। मैं भी पहनती हूँ घर के अंदर, दीप गर्मी होती है बोल के, मगर खोल के जाना नहीं ना। पहले मैं भी चली जाती थी ना शादियों में, मैंने भी किया है ना। दीन नहीं मालूम था ना, अपनी किताब में जीते थे, कुरान करीम को माने से पढ़ा नहीं था। जिस दिन हमने कुरान करीम को माने से जाना, क्या मैं गुजारिश की, मिन्नतें क्या की, गुजारिश क्या की, वो हजरत बोले छोड़ो। आपके हजरतों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, आपके कुरान के अंदर मौजूद है। जो रब्बुल आलमीन जो कहता है वो मौजूद है, ठीक है। तो 40वां करोगे, इसके बाद आपके घर में बच्चे होंगे तो 40वां करोगे। सोच के करना कि 40 दिन खबरों के पर बारिश पड़नी है, सोच के करना। जिस्म पे कपड़े नहीं होंगे, सोच के करना। तो नए कपड़े लाके 40वें पे पहनाते हो, सोच के करना। 40 दिन के बाद कपड़े पहनाएंगे, महशर में 50,000 साल नंगे रहेंगे ना। 50,000 years मैं भी मौजूद होंगी, आप भी मौजूद होंगे। न मैं बचूंगी ना आप बचेंगे। मिलके दीन को लेके आगे पहुंचा के सब बच जाओ। अल्लाह हमें माफ कर देगा, हमें कपड़े पहना देगा। आयशा अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि तुम मर्द नहीं देखेंगे क्या? मर्द औरत मिलते बोलेंगे आयशा नफ्सी नफ्सी की हालत होगी। कुरान करीम में आता है पर रखने की जगह नहीं होगी। परों को जैसे बिखेरता है अल्लाह ताला, किसी का हाथ कहीं अटका होगा, कहीं की टांग किसी की अटकी होगी, इतने भरे हुए होंगे। आज क्या घरों पे नाज, क्या महलों पे फखर, क्या नापरस्ती, क्या बिल्डिंगें लेके जाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे, कौन आबाद है, सब छोड़ के जाएंगे। आज हकदारों का हक अदा करो, देने वालों का दे दो, जो कोई ले ले छोड़ दो, आखिरत में सब मिलेगा। मुझे कोई भी चीज देखती हूँ सब मजा खत्म हो गया है, जायका खत्म हो गया है। मौज को भी जाती हूँ, कहीं देखती हूँ मेरे रब तूने सब कुछ दिया है, सारा जन्नत में दे दे, इससे अच्छा। वो तलब ही नहीं रही, वो बात ही नहीं रही। घर शौहर के लिए सजाओ करो करके रख देती हूँ, वो मजा ही नहीं है ना, वो जायका ही नहीं है तो जायका कुरान करीम में है, नमाज में जायका है, उसके जिक्र में जायका है, दूसरों को सिखाने ले आने में जायका है, खिलाने में जायका है, सलाम में जायका है, ये बनाने में जायका है, फिरके काटने में सबसे बड़ा जायका है। फिरके काट दिए, एक हो गए, सबसे बड़ा जायका है, ठीक है। बच्चा 40वां हो गया, जरा बड़ा हुआ, उसके बाद हम दीन सिखाएं, उसको कुरान सिखाएं। नहीं बात सो जा, तू सो जा, नमाज नहीं पढ़, सो जा। कई बच्चे बचपन में मरते हैं, ले जाके दफना देते हैं।
तब क्यों नहीं बोलते बारिश पड़ रही है? बारिश में दफनाते हैं बच्चों को, बारिश में धूप में हर हाल में फजर को उठाओ, नमाज पढ़ाओ, दोहर को। आज एक एग्जाम्पल कराए ना अल्लाह ताला आपके सामने। इस बच्चे को मैंने हाथ नहीं लगाई, मैंने क्या कहा, इसको अब से ही सिखाते हैं, 7 साल तक सीख जाएगा कि हम कोई लेडीज को हाथ नहीं मिलाना। 7 साल में जाके बोलूंगी तुम हाथ नहीं मिलाना, उसे लगेगा 10-12 साल तक सीखने के लिए। बचपन से उनको दीन सिखा दें, बच्चों को नमाज सिखा दें, शौहर क्या है सिखा दें, शौहर के अखलाक, शौहर के तरीके, ससुराल में कैसे रहना, देवर हैं, वो हैं, मैं क्या है, मैं चुचेरे तायरे मोलेरे फुपेरे कभी हमने देखा ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। शादी के बाद मिला ये फला ये फला ये फला, ऐसा लगा मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। किसी अजर मिलेगा, खबर में और दर्जे बुलंद करेंगे माँ के, और बुलंद करेंगे माँ के दर्जे। माँ ने किया था, कोई खबरदार खानदान का एक लड़का घर के अंदर नहीं आना, दुश्मन बन गई थी, सारा खानदान उसका दुश्मन था। आज हम तारीफ करते हैं उस माँ की, आज उस माँ की हम तारीफ करते हैं, पूरा खानदान करता है, वाकई उन्होंने परवरिश की। आज क्या करते हैं, तारे चिचेरे मोलेरे मिलो, मजे खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, हुक्का पार्लर जा रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, दुनिया के मजे लूट रहे हैं। आखिर में मजा चखना पड़ेगा, आग का मजा चखना पड़ेगा, पीप का मजा चखना पड़ेगा, खून का मजा चखना पड़ेगा, गर्म पानी का मजा चखना पड़ेगा, कांटे खाने का मजा चखना पड़ेगा। अगर दुनिया में करेंगे तो अपोजिट में हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास एक 10 मिनट ही है, थोड़ा खत्म कर लेने दो, थोड़ा हयात का अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, तकलीफ दूसरों को हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है, जवानी आती है तो लड़की को सजा के खूबसूरत करके पूरी तरीके से जवान बच्ची को दिखाने के लिए स्टाइल कराते हैं, बालों को हाईलाइट कराते हैं, उसकी पकड़ के ले जाके हमारे इंडिया में, मैं मेरे इंटरनेशनल में स्टूडेंट्स माशाल्लाह, दूसरी कंट्री का नहीं बता रही हूँ मैं, हमारे इंडिया का, बैंगलोर का बता रही हूँ, पूरे जिस्म की बाल नहीं निकालेंगे, लड़की की वैक्सिंग नहीं करेंगे, रींच के जैसे रहेगी, कोई बात नहीं है, रींच बालों में ही रहेगी, मगर आईब्रो पहले जाके निकालेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, सब खामोश हो गए ना, मेरा साथ नहीं देते हो। मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ, यही दुनिया से आई है जो मैंने भी कर चुकी हूँ। इस्लाह कर लो दीन की, आईब्रो नहीं करो। कुरान कहता है यूरिफिल मुजरिमून बिसीमाहुम व युखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, आईब्रो के बाल पैर पकड़ के फेंकेंगे। सूरह रहमान जाकर खोलो, उसके अंदर माना कितनी बार नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कारी क्या पढ़ते हैं, हाँ माशाअल्लाह, वो क्या रहमान है, खोल के देखो तो हवा निकल जाती है, उसमें हवा निकल जाती है अज़ाबों के बारे में, जन्नत के बारे में जो अल्लाह ताला कहता है। मजे लेते हैं, क्या सूरह रहमान है। मैं कहती हूँ सूरह रहमान पढ़ के हम डर के मरते हैं, ये कहते हैं सूरह रहमान, क्या रहमान का सूरा है, समझ रहे हो। तो सोचो, आईब्रो छोड़ दो, बीच में के बाल निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, इजाजत है। जिस्म के बाल अब निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, मगर आईब्रो तुम्हारे लिए जहन्नुम में ले जाएगा। जहन्नुम में आईब्रो के बाल पकड़ के, कौन कौन यहाँ पे आईब्रो करते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाना, बीच के नहीं है, बीच की इजाजत है, नाक के बाल की इजाजत है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। मैं ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ, मुझे चेहरे देख के समझ आती है, मगर मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद बोलेंगे, आप सच्चे इंसान बनेंगे। आप खुद नहीं बोलेंगे, आप झूठे इंसान बनेंगे। अल्लाह के लिए आज ही तैयार हो जाओ, मैं यहीं पे शर्मिंदा हो जाऊं, क़यामत के सबके सामने जलील ना कर। कौन कौन करते हैं आईब्रो, हाथ उठाए, उठा ले प्यारी बहना, उठा ले, उठा ले, उठाएं, दुआ करो, ऐ अल्लाह उनको हिदायत दे, आइंदा ना करे, उनके चेहरों पे नूर अता कर दे, उसकी ज़रूरत ना हो। आपको दुआ मिली ना, अल्लाह ताला माफ़ करता है तो पूरे गुनाहों को नेकियों में वजन करता है। जितने गुनाह किए हैं, आयत नंबर 70 सूरह अल फुरकान में कहते हैं, पूरे गुनाहों को लाकर मैं तोल के नेकियां बना देता हूँ। आज तीनों को मिलाना जी नेकी, काश हम भी होते तुम्हारी जगह,
वो जन्नत में कहा था ना गुनहगार, अल्लाह और मेरे गुनाह है, वैसी मेरी हालत होगी आज, समझे। दुआ करती हूँ अल्लाह हम सबको भी चेहरों पे नूर अता फरमा, हम सबको भी तू नूर अता फरमा, हम सब के भी गुनाह तू माफ कर ले। तो जवानी में बच्चों को जवानी में गुनाहों के रास्ते पे नहीं करो, ये हयात है, पल पल की चीज लिख रहे हैं, एक एक सेकंड की चीज लिख रहे हैं। जो अखलाक हम सिखा रहे हैं बच्चों को, बैठकर गीबत सिखाते हैं चाचाओं की, चाचियाँ की, ताई की, फूफू की, बैठ की गीबतें करते रहते, मैं भी करती रहती थी, ये गीबतों पे गीबतें करते थे, बहुत बड़ा गुनाह है, गीबतें ना करो। स्टूडेंट्स मेरी ना करो, मैं तुम्हारी ना करूं, जरूरत पे इस्लाह के हिसाब से बात कर सकते हैं, बात करना कोई गुनाह नहीं। जवानी के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के लिए माँ ऐसी बने, आप सब ऐसी बने कि बच्चों के लिए अल्लाह ताला एक हसीन तरीके की आखिरत की माँ बने। एक अच्छी दीनदार लड़की होगी, बच्चा पैदा होगा, शरीयत पे लाएगी, बोलेगी हम 10वां नहीं करेंगे, बोलेंगे 20वां नहीं करेंगे, बोलेगी लड़की 40वां नहीं करेंगे, लड़की को तैयार करेंगे। क्यों मैं बच्चियों को तैयार कर रही हूँ? ताकि वो ना करें, खुद तैयार होंगे। किसकी मौता होगी? मेरी माँ की मौता पे 3 दिन पे मैं नहीं गई, पूरा खानदान मौजूद, 10 दिन पे मैं नहीं गई, पूरा खानदान मौजूद, 20 दिन पे 40 दिन पे मैं बिल्कुल भी नहीं गई, साल भी हो गया मैंने नहीं गई। ये लोग खुद करते रहे, मैं अल्लाह से कहती रही, मैं रोकी हूँ अपने कदमों को, मेरी माँ के कदमों को सजा ना दे। मैंने रोका है अपने आँख को, मेरी माँ को सजा ना दे। क्योंकि अगर करेंगे गुनाह, आपके माँ बाप को मारेंगे पकड़ पकड़ के। कितना प्यार करते हैं हम पूरे माँ बाप को, मर जाते हैं कुछ बुखार आ गई, मर जाते हैं कुछ हो गया, मर जाते हैं दीवाने हो जाते, मर गए तो हम तो गलियों में ढूंढते रह जाते हैं, तो गलियों में ढूंढते रह जाते हैं, यादों में रह जाते हैं। तो सर पे हाथ रखना, याद कर कर के सर पे कहते हैं तू ही हमारा सबसे बेहतरीन वारिस है, अंता खैरुल वारिसीन। ताजिद बाजी को पूछा आज उनकी हालत क्या होगी, कैसे क्या क्या याद आता होगा, कभी पूछो, आज उनको पूछो, आप अपने आप को लेके आओ, वो लड़की को तैयार करो, बच्चियों को तैयार करो, आइंदा की नस्लों को तैयार करो। हम कब तक रहेंगे? बच्चे अपने दीन पे आ जाएं, अपने दीन की इस्लाह करें, नकाब करके ससुराल के मर्दों के सामने जाएं। छोटा सा नकाब मिलता है, इसमें माशाअल्लाह वाला नहीं लेना, सुभान अल्लाह वाला नहीं लेना। आजकल नकाब में भी स्टाइल, मर्द देखते ही बोले अल्लाह का नाम, टॉयलेट में 2 किताबें, ऐ बंदियां अगर कोई कर रहे हैं हिलाक हो जाएंगे, घरों का भी बर्बाद कर देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह के नाम को टॉयलेट में धो रहे। मैं दुकानदार को बोली तुम रखते हो, तुमको कितना गुनाह मिलेगा, पूरे नकाब प्रोड्यूस ही नहीं करो ना, आगे नहीं दो ना, बेचो ही नहीं ना। आप बेचते हैं तभी तो ले रहे हैं, उसको अक्ल नहीं वही आके ले रहे हैं, कोई इल्म नहीं वही ले रहे हैं। इल्म वाला लेगा, इल्म वाला लगाएगा, इल्म वाला इस्तेमाल करेगा, तो इसको सजा जो बैठ के 5 बार नमाज को जा रहा है मगर खुद बेच रहा है बंदा। तो अल्लाह से दुआ करो हम वो करें, पर्दे से लेकर हर चीज, वो जो शरीयत कहती है शरीयत का अपनाएंगे, आखिरत के साथ दुनिया भी हसीन करेंगे। अल्लाह ताला का वादा है दुनिया भी मैं हसीन करूं, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। सूरह आला तो हर जुम्मा पढ़ते हैं, मस्जिदों को जाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं तूने तरजीह दी दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल आज पिकनिक को मुझे जाना था, फॉर एग्जाम्पल आज 2 चीज मुझे आएंगे ऑप्शन, आज या नहीं तो चलो सैटरडे मेरा वीकेंड होता है, जाओ वीकेंड करके आ जाओ। आज सैटरडे एक दूसरा ऑप्शन आया, आपके घर में दरसुल कुरान रखो, मैं वीकेंड करूं या दरसुल कुरान करूं, मेरे लिए ऑप्शन है आज। तो मैंने ये आयत को याद की, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तेरे लिए दुनिया को तरजीह ना दे, दुनिया को इम्पोर्टेंट ना दे, दुनिया की चीजों की इम्पोर्टेंट ना दे, आखिरत को इम्पोर्टेंट दे। वो तेरा असल घर है, वहीं पे स्टार के घर, स्टार के महल, 5 स्टार महल, पूरे स्टारों के महल पूरे तुझे मिल जाएंगे। तो आप लोग याद रखना 2 चीजें बाए, दीन और दुनिया। दुनिया को तरजीह नहीं देना, आखिरत को तरजीह देना, यही है हयात। जो एक दिन जो छीन लेंगे अल्लाह ताला, पैरों से निकलेगी,
पैरों से रूह खत्म होगी। जो कदम हम सजा के मेहंदियां लगा कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर गलत जगहों पे जा रहे हैं, ये कदम आमिलों के घर को जा रहे हैं, ये कदम मज़ारों के पास जा रहे हैं, ये कदम कहीं जादू कराने जा रहे हैं, ये कदम किसी के घर में बुराई करने जा रहे हैं, ये कदम बाजारों में विंडो शॉपिंग को जा रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए कैसे हैं सामान, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, ये कदम बॉयफ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, ये कदम हराम के लिए जा रहे हैं, ये कदम नेकी के लिए जा रहे हैं, ये कदम दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, ये कदम किस रास्ते पे चल रहे हैं। कदमों से पूछ पूछ के सूरत नाज़ियात में अल्लाह ताला कहते हैं टाइट खींच कर निकालेंगे, फरिश्ते घुस जाएंगे तो टोलेंगे, रूह को खींच कर निकालेंगे। पाँव से खत्म होते होते आते आते आखिरी जबान से कलमा पढ़ के आखिरी निकलने के लिए दुआ करें। कलमे के साथ हमारी आखिरत होगी। कब होगी? अगर कलमे के अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है, जिंदगी वैसी करेंगे तो वो इंसान कलमा पढ़ेगा। नहीं तो ये बोलेंगे मेरा पीर ही मेरा सनम है, मेरा पीर ही मेरा खुदा है, या गौस अलमदद, या अली अलमदद, वहाँ पे बोलेंगे। कौन होगा वहाँ पे? ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं रहेगा। हयात 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 हयात, प्याला पी लो नहीं तो पछताओगे। मोहब्बत करो बुजुर्गान दीन से, दरूद व सलाम भेजते रहो, सारी जिंदगी दरूद पढ़ो, पूरी जिंदगी दरूद पढ़ो, सांस भी नहीं लो दरूद पढ़ो। आप नमाज फराइज अदा करो, दरूद पढ़ते रहो। ये तुम्हारी मोहब्बत है। वो मोहब्बत गुड़ फुटाने वो नहीं, शरबत चोंगे गुत्ती वो नहीं, जन्नत के वो खाने छोड़ के हमारे गुत्ती वो मुरमुरे खाने। अंबिया औलिया आएंगे, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि जिस्मों पे बोलते मेरे आंख पे आ गए, बाबा आ गए या मौला अली आ गए। जन्नत में छोड़ के अल्लाह के वली आएंगे इस दुनिया में। अल्लाह ने कहा है सूरह मुतफ्फिफीन, बयान भेजिए, नंबर दे देना, ऐड कर देना, ये लो एडिशन शुरू करो, नंबर भेजती हूँ। कुरान करीम खोल के देखो है या नहीं है, साथ में मेरा लोकेशन भी है, नंबर भी है, आप मुझे मिल सकते हैं जब मैं जिंदा हूँ। मर गई कोई और है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुतफ्फिफीन जन्नत में घर है, नेक रूहों को रखा जाता है, आएंगे नहीं वापस। सिज्जीन बदकार रूहों को जहन्नुम के गड़े में डालकर, जहन्नुम में हॉल है उसमें बंद करके रखेंगे, कोई नहीं आ सकता। अंबिया औलिया इस गंदगी में आएंगे, जन्नतों को छोड़ के आएंगे, जन्नत छोड़ के आएंगे, अल्लाह ताला की छोड़कर हमारे जिस्मों में उतर जाएंगे, हमारे हाजिरियां पूरी करेंगे। जिन करता है, जिन और मोकल करते हैं, बुजुर्गान दीन नहीं आते। ये लोग आपको झूठ बोले हैं, कई लोग आपको जो इल्म दिए हैं ये झूठा इल्म है। ये जिन आते हैं और मोकल आते हैं। मेरा जिन आपके जिन से दोस्ती करेगा, वो जिन पूछेगा कहाँ से निकले, कहाँ आए, पूरा दिन क्या हुआ, आपके जिन को मालूम रहता है। ओके, फिर मेरे जिन को मालूम होता है, मेरी पूरी हिस्ट्री जाके इनको बोलेगा, इनकी पूरी हिस्ट्री मुझे आके बोल देगा। जिन मिला के बता देता है, हाँ कैसा मालूम, अरे तुमने कैसा मालूम हुआ। तो जिन की मुलाकात की बातें हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। ये हयात को खराब ना करो, बुढ़ापे तक की जिंदगी है। ये नहीं समझना कई औरतें बूढ़े होके, छोड़ो भी बुढ़े होगी, सब घड़ी क्या है देखने के लिए, कौन है देखने के लिए, पर्दे छोड़ देते हैं। नहीं है, नहीं है। बुढ़ापे में भी आप जरा अपना कर लेंगे, छुपा लेंगे, कर लेंगे, अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। अल्लाह को पसंद के काम करो। कुरान में नहीं लिखा है जवान औरत पर्दा करे, बूढ़ी औरत ना करे, नहीं कहा है। औरतों से कहें कि सर से चादर को नीचे कर ले। मैं कहती हूँ बूढ़ी हो जाती है, ईमान वाली औरतें तो ओढ़नी फेंक देती हैं। कहाँ है भाई, कुछ भी नहीं है, क्यों ओढ़े। नौज़बिल्ला, आपको कहा है ओढ़ने के लिए, ओढ़े है या नहीं आपको रब को मालूम है, आपको मालूम, क्यों बता रही है। बूढ़े हो गए ये मतलब नहीं है। जवानी का मतलब ये नहीं कि रंगरलियां मनाएं। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल जाएं। सबके लिए एक ही कानून है, एक ही तरीका है। दुआ करो अल्लाह ताला से, हमसे जो गुनाह हो गए अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। मौत और हयात तक जितनी ज़िंदगी हमने गुनाह कर लिए हैं, बाकी कितनी ज़िंदगी है। रात को सुना, अल्लाह के नबी ने कहा है वैसे होंगे, जागे जागे जैसे हैं ऐसे ही होंगे।
सोए सोए जैसे हैं ऐसे ही होंगे, मतलब मरेंगे ऐसे ही, जिएंगे ऐसे ही। कोई सवाल है आपका? 40वां 20वां, हाँ सबसे बड़ी बात बोलने भूल गई, हमारी हयात का बहुत ही बड़े रात को 12 बजे बरोबर काटा जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके बाद कई होते हैप्पी बर्थडे टू मी, मजे लेते हैं। कोई खुशी आ गई, एग्जाम हो गया, नस्ल हो आई एम पास, आई एम पास, आई एम पास। ये 3 चीजों को छोड़ो, मेरे नबी कुछ होता, अल्लाह अकबर, सजदा शुक्र। गर्दन को झुकाओ, गर्दन को यूं नहीं अकड़ाओ, शैतान अकड़ाता है। बच्चियां सुन रही हो, ऐसे नाचोगी, ऐसे नाचोगे, अल्लाह चॉकलेट दे तो क्या करोगे? सजदा करोगे, ओके सजदा करोगे, ऐसे नाचोगे, क्या करोगे? सजदा करेंगे। कुछ अच्छाई हो गई, नाचने लगते हैं। हमारे में नाच के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो गया नाच, चाहे कुछ अच्छा कुछ लेके वेरी नाइस हो, यू गॉट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना जाके सजदा करके शुक्र है अल्लाह तूने मेरे शौहर को हिदायत दिया, और हिदायत होगी, कल आपको हीरे का लेके आएगा। आप ऐसे ना करो, शुक्र करो, शुक्र करोगे नज़ीदकुम, कुफ्र करोगे अज़ाबुन अलीम। शुक्र करते रहेगा, यही बात है। तो अल्लाह ताला को नाराज ना करें, हैप्पी बर्थडे ना करें, एनिवर्सरी ना करें। मेरा दिल कितना करता है पता है, आज मुझे कोई भी तोहफे नहीं देते। हम लोगों को तोहफों की ख्वाहिश है, हम लोगों की मोहब्बतों की ख्वाहिश है। दुआ करें आपके शौहर हर दिन आपसे मोहब्बत करें, हर दिन आपको एनिवर्सरी की तोहफे दें, हर दिन आपको करें। आप बच्चों को बर्थडे, माँ बाप की गलती है, माँ बाप को सजा मिलेगी। माँ बाप एक केक लेके आए, बच्चों को दें, आप लो बेटा आपको पसंद है केक खाए, रोज केक खिलाएंगे। बच्चे साल में केक काटना पसंद नहीं करेंगे, केक देख के कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, रोज खाते हैं। आप लोगों की गलती है, आप तंग करके बच्चों को रखते हैं, केक नहीं खिलाते। लेके आओ बड़ा केक, 1 केजी का ऑर्डर करो, घर में ला के लो बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो, सबको तकसीम करो, खुद खाओ। जब वो बच्चे काटेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के, वो काटने की लज्जत खत्म हो जाएगी, शैतान कट जाएगा। महीने में एक बार आधा केजी का केक लेके आओ, फ्रिज में रखो, बच्चों को बोलो काट के सबको तकसीम करो। वो बच्ची को पूछो बर्थडे के टाइम पे, बेटा तुम बर्थडे करके केक काटोगे? बोलेगी बच्ची मैं रोज हमेशा तो काटती हूँ, क्या काटना छोड़ो। ठीक है, कोई सवाल है? हयात में है, मौत तक ना पहुंच जाना, सबको पहुंचना है। रोज रात को पहुंच रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है। एक दिन फ्यूज उड़ जाएगी, कोई नहीं लगा सकेगा फ्यूज। सारी दौलत भी डाल दो, झाड़ फूंक कर लो, आमिर को बुला लो, कुछ भी कर लो, अल्लाह सूरह क़यामा में कहता है लेके आओ, किसको लाना है लाओ, बोलो लौटाने के लिए कोई नहीं लौटाएगा। आपको भेजा है देखने के लिए कौन अच्छे अमल करते हैं, कौन मेरी बात मानते हैं, कौन मेरे तरीके पे जिंदगी करते हैं। कोई कौन मेरी बातों को मानकर मेरे तरीके पे यहाँ पे रहेंगे, तो जो तुमको पसंद है मैं जन्नत में वैसी जन्नत दूंगा। जो मेरी पसंद पे दुनिया करो, तुम्हारी पसंद पे आखिरत तुम करो। दारुल आखिरा, दारुल आखिरा, दारुल सलामा, दारुल आखिरा, दारुल सलामा। अल्लाह ने ईमान का घर दे। ठीक है, 9 सवाल बोलो। सही बात है, सूरह वाक़िया रात में पढ़ने से, क्योंकि सूरह वाक़िया पढ़ना सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रात को सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो, रात को लाजिम कम से कम 100 आयतें तो पढ़ना है। इसलिए मैं बैठ के गिनती कर रही थी किसमें कितनी आयतें हैं, मैं पढ़ रही हूँ क्या। रात को, हर रात को सूरह मुल्क, सूरह सजदा और सूरह वाक़िया पढ़ लो। सूरह वाक़िया पढ़ लो क्योंकि जन्नतों की बात है, जन्नतों की बात है। तो बड़ी अजीब बात है, माँ ने 2 की वादा की हूँ, बाकी का इसके बाद करती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसके बाद आप मेरे भेजने से पहले सूरह मुल्क की 5 आयतें माने पढ़ेंगी, आप याद करेंगी, कम से कम ये एक आयत पढ़ेंगी, एक आयत माने। कोई बोलेगा शर्म आती है, शर्म आती है ना तो मैं नहीं मानूँ, यही मुझे पहुँचाना है सब। तो शर्म आएगी ना हमें, हम सीखेंगे। शर्म आएगी ना हमें, फटे कपड़े पहने हैं,
تو اچھے کپڑے جا کے جلدی جلدی سے کسی کو بولو تمہارا برقع پڑ گیا ایسا پڑ گیا اللہ اندر کر لیں گے. ہاں ہے نا, ہے نا. تو دین تمہیں یہاں پہ روکا ہوا ہے, بولیں گے صحیح کر لیں گے. کوئی غرور کے حساب سے نہیں, کوئی ریاکاری کے حساب سے نہیں. میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی, میں بھی بدعت میں تھی, میں بھی شرک میں تھی, میں بھی گنہگار تھی, میں بھی بدکار تھی, ابھی بھی گنہگار بدکار ہوں. اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف کر دے, ہم سب کو سن لیں, علم عطا کرے, عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت